हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वर्षा मैथ्स क्लासेस पर। आज हम स्टार्ट करते हैं एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की एक इम्पोर्टेंट थ्योरम, दैट इज प्रूव दैट द ग्रुप ऑफ ऑर्डर 30 इज नॉट सिंपल। ऐसे बहुत से जो कॉम्प्लेक्स ग्रुप्स होते हैं वो डिस्कस किए जाते हैं एग्जाम में कि शो करो ये सिंपल नहीं है, या फिर ये नॉर्मल सब ग्रुप हैं, या फिर कुछ ऐसे ग्रुप्स को उठा के उनके ऊपर डिस्कशन पूछ लेते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे ग्रुप ऑफ ऑर्डर 30। सो लेट जी बी अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 30, दैट इज लेट जी बी अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 30, that is order of G is 30. We can write 30 in the form of primes as 2 into 3 into 5. Now we will calculate the number of silo P subgroups, whether it exists or not, and then we will calculate how many exists. Firstly, by Silo's first theorem, as 2 divides order of G, but 2 square does not divides order of G, so there exists at least one silo 2 subgroup of order 2, क्योंकि यहाँ पे 2 की जो हाईएस्ट पावर है वो 1 ही है, सो इट्स ऑर्डर विल बी 2. अगेन as 3 divides order of G, but 3 square doesn't divides order of G, so there exists at least one silo 3 subgroup of order 3. यहाँ पे ऑर्डर उसका 3 ही होगा. Also as 5 divides order of G, but 5 square does not divides order of G, so there exists at least one silo 5 subgroup of order 5. ये सारे साइलो फर्स्ट थ्योरम से हम पहले जानते हैं कि अगर हमारे पास किसी ग्रुप का ऑर्डर कोई भी प्राइम होता है तो उसका जो सब ग्रुप एग्जिस्ट करता है और उसी ऑर्डर का वो सब ग्रुप एग्जिस्ट करता है. नाउ we will calculate the number of silo 3 subgroups or 5 subgroups. Similarly, we can calculate the number of silo 2 subgroups. So firstly, we will calculate silo 3 subgroups. The number n3 से हम डिनोट कर रहे हैं साइलो 3 सबग्रुप्स को. of silo 3 subgroups will be, by using Silo's third theorem. साइलो थर्ड थ्योरम क्या कहती थी? that number of silo P subgroups will be equals to 1 plus Kp, where P is the prime and K is any positive number. So number of silo 3 subgroups will be 1 plus 3K, where n3 divides order of G, that is n3 equals to 1 plus 3K. ऑर्डर ऑफ जी की वैल्यू डाल देते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5, जस्ट बिकॉज जी सी डी ऑफ 1 plus 3K, 3 is 1, so we can write n3 equals to 1 plus 3K, n3 divides, क्योंकि इसका 3 के साथ जी सी डी 1 है, so it will divide 2 into 5. Now we will put the values of K one by one. Firstly, we will start by starting from K equals to 0. If K equals to 0, then n3 will be 0 रखेंगे तो 1, and 1 divides 2 into 5 10. तो एक तो है ही साइलो सब ग्रुप. इफ अब 1 डाल के देख लेते हैं, then n3 will be 3 into 1 is 3 plus 1 4, and 4 doesn't divides 10.
if k equals to 2, then n3 will be 7, but 7 also doesn't divide 10. If k equals to 3, you have to put the values of k one by one in the increasing order. Then n3 will be 10 and 10 divides 10. So number of silo 3 subgroups will be either 1 या तो 1 पे एग्जिस्ट कर रहा था या फिर 10 पे और 10. अभी हम अब निकाल लेते हैं नंबर ऑफ साइलो 5 सबग्रुप्स. द नंबर ऑफ साइलो 5 सबग्रुप्स साइलो 5 सबग्रुप्स भी हम सिमिलर ऐसे ही निकालेंगे जैसे हमने साइलो 3 सबग्रुप्स कैलकुलेट किए थे बाय यूजिंग द साइलोस थर्ड थ्योरम. सो बाय साइलो थर्ड थ्योरम वी हैव np equals to 1 plus kp, so we can write n5 equals to 1 plus 5k, where n5 divides the order of group, यानी order of group है 2 into 3 into 5. Since the GCD of 1 plus 5k comma 5 is 1, so we can write n5 equals to 1 plus 5k comma n5 divides, just because its GCD is 1, so 2 into 3 will be 6, यानी n5 डिवाइड करेगा बस 6 को. अभी हम k की वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे वन बाय वन. वी विल स्टार्ट फ्रॉम 0. इफ k equals to 0, then n5 will be 1 and 1 divides 6. Now k equals to 1, then we get n5 equals to k into 1. 5 into 1 is 6 plus 1 6 and 6 divides 6. So और जब हम k इक्वल्स टू 2 डालेंगे तो n5 की वैल्यू जो होगी वो 11 आएगी. एंड 11 डजेंट 6, तो हम फर्दर अगर हम करते जाएंगे तो वो इंक्रीजिंग वैल्यूज़ ही आती जाएंगी. और जब हमारी न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर से ज़्यादा बड़ी वैल्यूज़ आनी स्टार्ट हो जाती हैं तो फर्दर उससे आगे वो उसे डिवाइड करेगा ही नहीं, इसलिए हम यहीं पे स्टॉप कर देंगे. सो द नंबर ऑफ साइलो 5 सब ग्रुप्स आर either 1 or will be 6. either 1 or 6. अभी हमारे पास कुछ केसेस हम डिस्कस कर लेते हैं. हमारे पास जैसे निकल के आए हैं या तो 1 है या 6 है. ऐसे ही नंबर ऑफ साइलो 3 सब ग्रुप्स में या तो 1 था या फिर 10 था. तो अभी देख लेते हैं कि कैसे हमारे पास एग्जिस्ट करेंगे. थस वी हैव 4 cases. We have 4 cases. What are these cases? Case 1, 2, 3 and 4. फर्स्ट है अगर n3 भी हमारे पास 1 हो, n5 भी 1 हो, n3 तो हो हमारे पास 6 एंड n5 हो 1. सॉरी ये 10 होंगे. अगर n3 हो 1 और n5 हो 6. और फोर्थ केस है n3 इज 10 एंड n5 इज 6. तो ये हमारे पास 4 केसेस बनेंगे. इनके ऊपर अभी हम डिस्कस कर लेते हैं. जो स्टार्टिंग के 3 केसेस हैं ये और ये, इन तीनों केसेस में तो आइदर द साइलो 5 सब ग्रुप और द साइलो 3 सब ग्रुप इज यूनिक. So it will be normal and hence it is not simple. But in fourth case we will discuss. That is, in first 3 cases either a silo 5 subgroup or a silo 3 subgroup is unique. So it is normal and hence it is not simple.
तो 3 केसेस से तो हमें पता चल गया है कि जो हमारे पास ग्रुप है वो सिंपल नहीं है। लेकिन अभी हमारे पास एक और केस बचता है, 4th केस, वो भी तो हमें डिस्कस करना है। उससे भी अगर हमें पता चल जाए कि जो हमारा ग्रुप है वो सिंपल नहीं है, देन ओवरऑल वी कैन से दैट द ग्रुप इज नॉट सिंपल। सो लेट अस डिस्कस द ग्रुप 4th। नाउ वी कंसीडर ग्रुप case 4th. In this case we have 6 साइलो 5 सब ग्रुप्स। हमारे पास 6 साइलो 5 सब ग्रुप हैं इस केस में, 5 साइलो 6 साइलो सब ग्रुप्स, एंड ईच ऑफ ऑर्डर is 5. So let these 6 silo 5 subgroups are, let these subgroups are H1, H2, H3, H4, H5 up to so on H6। तो ये 6 साइलो 5 सब ग्रुप्स हमने लेट कर लिए हैं। अभी हम दिखाएंगे कि आइडेंटिटी विल बी द कॉमन एलिमेंट इन दीज 6 साइलो 5 सब ग्रुप्स। सो लेट I is not equals to J, I not equals to J, and HI intersection HJ is contained in HI. So by Lagrange's theorem we have, क्योंकि अभी ये इसका सब ग्रुप है, सो इट्स ऑर्डर कैन डिवाइड द ऑर्डर ऑफ HI intersection HJ can divide order of HI. Since order of HI is 5, बिकॉज साइलो 6 सब ग्रुप का, यहाँ पे साइलो 5 सब ग्रुप का ऑर्डर 5 था, तो इसकी वैल्यू 5 है, दैट इज इट्स वैल्यू इज 5। सो आइदर ऑर्डर ऑफ HI intersection HJ will 1 or 5, because 1 or 5 can divide the 5. So if order of HI intersection HJ is equals to 5, then we have order of HI equals to order of HJ equals to 5, because जब इन दोनों के इंटरसेक्शन की वैल्यू 5 है तो इसका मतलब इसमें भी 5 होंगे एलिमेंट्स और इसमें भी 5 होंगे, इसलिए ऑर्डर ऑफ HI is also 5 and HJ is also 5. It means HI equals to HJ, that is I equals to J, which is a contradiction, बिकॉज हम यहाँ पे I is not equals to J लेकर चले थे, which is a contradiction. So order of HI intersection HJ will must equals to 1, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 2 केसेस थे, या तो 1 या 5 हम लेट करके चले, वो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, तो इसका ऑर्डर होगा 1. Hence we have shown that identity is the common element in all these HIs, that is HI intersection HJ is identity for all I is not equals to J. Also आइडेंटिटी तो उनमें कॉमन हो गया सारे 6 सब ग्रुप्स में। अब हम नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट्स देख लेते हैं। नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट्स ऑफ HIs will be 6, बिकॉज साइलो 6 थे, मतलब वो साइलो 5 सब ग्रुप थे, उनकी वैल्यू 6 थी एंड उनका ऑर्डर था 5, उसमें से आइडेंटिटी हमने कर दी रिमूव, तो नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट्स बचे 6 into 4 equals to 24 एलिमेंट्स आर द नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 5. Similarly the N3 equals to 10. अभी हम N5 के ऊपर डिस्कस कर रहे थे, N5 से हमारे पास नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट्स 24 आ गए। अब हमें N3 को भी तो देखना है,
हम यही केस 4th तो डिस्कस कर रहे हैं। N5 तो हमने देख लिया, 6 एलिमेंट्स थे उसके, तो नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट्स कितने निकल के आए, आइडेंटिटी उनमें कॉमन था। अब हम N3 के ऊपर देखते हैं, उसमें 10 एलिमेंट्स हैं। अभी आइडेंटिटी एलिमेंट उनमें भी कॉमन होगा और नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट्स हम कैलकुलेट करेंगे। दैट इज N3 इक्वल्स टू 10. So let these 10 elements are, these 10 subgroups are, let these be K1, K2, so on K10 by the same manners as N5, by the same manners we can show that there are 10 साइलो सब ग्रुप्स हैं, 3 ऑर्डर के हैं, आइडेंटिटी रिमूव कर रहे हैं, तो टोटल नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट्स हमारे पास 20 बच जाएंगे। आर द नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3। थस टोटल नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट्स जी के पास कितने हैं? जी हैज़ 24, तो ये वाले निकल के आए थे साइलो 5 सब ग्रुप्स के, और साइलो 3 सब ग्रुप्स के निकल के आए हैं 20, यानी 20 + 24 इक्वल्स टू 44 एलिमेंट्स। 44 एलिमेंट्स हमारे पास हो गए टोटल नॉन आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी भी हम कैलकुलेट ऐड कर लें तो टोटल एलिमेंट्स हमारे पास 45 हो जाएंगे। बट दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ग्रुप का ऑर्डर तो भाई 30 था और इसका जो एलिमेंट्स इसके अंदर आ गए वो 44 आ गए, उससे ज़्यादा एलिमेंट्स आ गए ग्रुप के अंदर जितने ग्रुप का ऑर्डर था, तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं। एज ऑर्डर ऑफ जी इज 30, हेंस केस 4th इज नॉट पॉसिबल। और पहले 3 केसेस से हम दिखाई चुके हैं कि जो ग्रुप है वो सिंपल नहीं है। हेंस by above 3 cases we have shown that group G is not simple, hence proved। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो ग्रुप है वो सिंपल नहीं है। ऐसे ही हम सारे ग्रुप्स को डिस्कस कर सकते हैं। ग्रुप ऑफ ऑर्डर 45 जो हमने उस दिन डिस्कस किया था, 56 वाला, वो भी सिमिलर इसी की तरह था। ऐसे ही हमें कोई भी पर्टिकुलर ग्रुप को एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो हमें इसी तरीके से वो ग्रुप डिस्कस करना है। थैंक यू सो मच।